गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थर्ड है साइंस का। कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना और इस वीडियो को ऑल्सो। सो स्टार्टिंग द वीडियो। In the reaction of 3.5 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of the ethanoid acid. It's mean, 3.3 gram of the sodium carbonate है रिजेक्ट किसके साथ कर रहा है 6 ग्राम ऑफ द इबोनिक एक्सिड। द प्रोडक्ट ऑफ द 2.2 ग्राम of carbon dioxide, तो 0.9 gram water and 8.2 gram of the sodium ethanoid. So that these observations are in the agreement with the law of the conservation of the mass. Sodium carbonate is sodium ethanoid and carbon dioxide of water. In a reaction, sodium carbonate react with ethanoid acid to the product of sodium ethanoid, carbon dioxide and water. Sodium and ethanoid and sodium and carbon water and carbonate acid and ethanoid carbon dioxide. Masses of the sodium and carbonate is 5.3 gram. Mass of the ethanoid acid 6 gram. Mass of the sodium ethanoid 3.2 gram. Mass of the carbonate 2.3 gram. Mass of water 0.9 gram. Total mass of the reaction is 5.3 in plus 96 is 11.3 gram, and the total mass of the after reaction 8.2 plus 8.2 plus 8.2 plus 2.3 0.9 gram is equal to total 11.3 gram. It's mean total mass बिफोर रिएक्शन टोटल मास आफ्टर रिएक्शन इक्वल होते हैं। इट्स मीन हमने ये इसलिए हमें पता है क्यों लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का मास एकदम सेम रहेगा। ओके, बस इसके एलिमेंट्स में मतलब कुछ एलिमेंट में चेंजेस आ सकती है लेकिन उसका मास सेम रहेगा। तो गिवन द ऑब्जर्वेशन, हैंस गिवन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द are the agreement with the law of the conservation of mass. Okay, second क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास फॉर वाटर फ्रॉम वाटर में है। ओके, व्हाट mass of the oxygen what mass of the oxygen gas should be the required to reach completely 3 gram of the hydrogen gas. It is given that the ratio of hydrogen oxygen by the mass to form water is 1:8, then mass of the oxygen gas required to react completely with 1 gram of hydrogen gas is 8 gram. Therefore, the mass of the oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas is 8 into 3. Okay, to 24 gram. इसमें क्या कहा है, what mass of the oxygen gas we require to react completely 3 gram of hydrogen. 3 gram of hydrogen के साथ कितना रिक्वायर्ड चाहिए। देखो हाइड्रोजन का क्या है, तो 1 ग्राम इंटू 1 है और ऑक्सीजन हमें दे नहीं रखा। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा 1:8, देन mass of the oxygen gas required
ज़रूरत है टू रिएक्टेड कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8 ग्राम ऑफ सी। ओके, मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस है तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस 8 ग्राम होगा। ओके, ऑक्सीजन होगा तो देयर वर मास ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिकेट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम। 3 ग्राम के साथ अगर रिक्वायर करें तो 3 इंटू 8 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 28 ग्राम ऑक्सीजन रेशियो 3 ग्राम of the hydrogens. I hope you understand. Second, which postulate of the Dalton atomic theory is result of the law of the conservation of mass. Postulate of Dalton atomic theory, which is a result of the law of the conservation of mass, is it's me. The postulate of the Dalton atomic theory, which is result of the law of the conservation of mass, is देखो Dalton atomic theory का postulate जो which is result of the law of the conservation of mass is atom are individual particles. Atom क्या है? Individual particles है जो which can either be create and not destroy in chemical reaction. Atom is individual particles जो cannot be created and not destroy in a chemical reaction. Okay, that is reason. इसने क्या किया था? Which postulate of atomic theory is result of the law of the conservation of mass. लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास की मतलब डॉल्टन की थ्योरम से लॉ ऑफ द कंजर्वेशन मास क्या था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएट, ना ही उसे क्रिएट कर सकते, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर, ना ही उसे बना सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, वही इंडिविजुअल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। जो मैंने ये लाइन बताई थी आपको, सॉरी, ये जो ये लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर कंप्लीटिंग पूल method. Okay, which postulate of Dalton atomic theory can explain कि law of the definite proportion, मतलब Dalton atomic theory का postulate जो can explain the law of the definite proportion. The postulate of Dalton's atomic theory. The postulate of Dalton atomic theory which can explain the law of the definite proportion is postulate of Dalton atomic theory which can explain the law of the definite proportion is the relative number and kind of atom is given a compound remain constant. कुछ ये पता चलता है कि लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन, उन्होंने कहा कि द रिलेटिव नंबर, जो उसके रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, उसका एटम गिवन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वो चेंज नहीं होंगे। देन आगे देखते हैं। ओके, आगे क्या है? डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट्स को डिफाइन करना है। जैसे देखिए, मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इट इज रिटर्न एज यू, और पहले हम पता क्या लिखते थे, AMU लिखते थे, फिर कंसिडर करके IUPA इसी ने इसे यू ही कंसिडर कर दिया। मतलब मास यूनिट क्या है? मास यूनिट इक्वल की टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब मास यूनिट क्या है? मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास
of atom of carbon is called one atomic mass unit. It is written as U. The mass unit is equal to exactly 1/12. I hope you understand हो गए होंगे. Why is it not possible to see the atom with unaided eyes? क्यों पॉसिबल है कि हम सी एटमाइज कर सकते हैं? ध्यान से देखिए. द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा हमें पता है. That is not possible to see it with unaided eyes. And also atom of an element does not exist independently. मतलब हम अपनी आँखों से उसे देख ही नहीं सकते. ओके, unaided eye से देख ही नहीं सकते हैं. और ये एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो किसी पे डिपेंड होता है, इंडिपेंड नहीं होता है. वो किसी पे डिपेंड ही रहता है, इसलिए हम देख नहीं पाते उसे. ओके, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ओके, अल्युमिनियम क्लोरीन. ओके, सोडियम सल्फर. ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोजन. सोडियम सल्फर, सोडियम का क्या तो Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है 2Na2. ये फॉर्मूला है तो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा. एल्युमिनियम का क्या होता है Al, क्लोरीन का Cl और 3. सोडियम का Na, सल्फेट का S 2H3S. मैग्नीशियम का हाइड्रोजन का मैग्नीशियम का G होता है HO2. दिस okay, write down the name of the compound respected by the following formula. Write down the name of the compound represented by the following formula. Okay, aluminum sulfate. Okay, calcium chloride. Okay, potassium sulfur. Okay, potassium carbonate. Sorry, potassium लास्ट वाला गलत है. दे नहीं लगा. ये दे नहीं लगा, ये ध्यान से दे दिए. ये क्या होगा? ये होगा पोटेशियम नैरो. आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ द केमिकल फॉर्मूला. क्या मीनिंग, क्या टर्म है, क्या मतलब है केमिकल फॉर्मूला का टर्म का. तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मीन symbolic representative of the composition of a compound. From the chemical formula of the compound, we can know the number and kind of the atoms of different element that consist in the compound. For example, from the chemical formula CO2 of carbon dioxide, we come to know that one carbon and atom and 2 oxygen atom are chemically bound together to form one molecules of the compound and carbon dioxide. ध्यान से देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मास. सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कंपोजिशन ऑफ है कंपाउंड क्या होता है. फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का वी कैन नाउ नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट द अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला CO2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी कम टू नाउ, हम जानते हैं कि 1 कार्बन ऑफ एटम एंड 2 ऑक्सीजन. 1 carbon of atom, 2 oxygen atom are chemically bound and together to form one molecule of compound carbon.
हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन 1 2 एटम प्रेजेंट, 3 एटम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आयोन्स में क्या होता है और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होती है। इन H2S molecules 3 atom present, 2 hydrogen and 1 sulfur. Okay. In PO43 ions 5 atom present, how 1 phosphorus and 4 oxygen। ये 3 क्या है ये पूछोगे तुम, ये 3 ions का है, 3 ions का है, ये इसलिए कहा गया है। Calculate the molecules of mass H2, O2, Cl2, CO2, HCH24, CO24, this and this 4। ओके, इसका मास कैलकुलेट कर आराम से कर लेंगे। पहले ये देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 1 इंटू 2 हो गया, 2U हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 इसको 18 हो गया, सॉरी 22। क्लोरीन का याद है आपको, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द सेल, तो 35 होते हैं, 35.5 इंटू 71U। और CO2 मतलब कार्बन का क्या होता है 16 एटॉमिक मास होता है, तो इसमें अलग दे रखा है CO2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 2 O2। तो देखिए 12 प्लस O2 16 इंटू 2 44 इज आंसर। C मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। ओके, और ये देखिए मैं आपको नीचे बताते जाऊंगा। अब हाइड्रोजन C कार्बन, H हाइड्रोजन, कार्बन का 12 इंटू 2 24 6 प्लस 24 is 6 30 इज आंसर। ओके, और ये देखिए हाइड्रोजन CO2 H2 मतलब 2 इंटू 2, C कार्बन 12 इंटू 2 12 और हाइड्रोजन 4 इन 28 इज आंसर। देखिए करेक्ट जा रहा है सारा, कुछ नहीं करना, सिंपल से फॉर्मूला पुट करना है, जैसे 2 इंटू जो भी दे रखा है उसे मल्टीप्लाई, जैसे ये एटम्स दे रखा है, एटम्स को मल्टीप्लाई करना है इंटू एटॉमिक मास से, उसके एलिमेंट के एटॉमिक मास से। ओके, अब जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 होता है, 14 इज एटॉमिक मास नंबर होता है, और हाइड्रोजन 1 इट को 17 इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल CHO3 बहुत ईजी है, C मतलब कार्बन 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 3 1 आता है, हाइड्रोजन 3 इंटू मतलब 3 मतलब 12 हो गया, ठीक है, 12 और 3 15 हो गया। हाइड्रोजन का 16 होता है, तो 12 और 16 प्लस कितना हो गया 12 एंड 16, सॉरी 15 और 16 कितना हो गया 31 और 1 प्लस 31। ओके, सी दिस, जैसे देखो एटॉमिक मास कुछ नहीं है 12, ठीक है, और एटम ऑफ द हाइड्रोजन 4 दे रखा है, यहाँ गलती कर रखा है इन्होंने, 3 गलत कर रखा है, यहाँ 3 होगा। ओके, तो 3 हो जाएगा, 15 हो गए, 15 ये हो गए। अब ऑक्सीजन कितना है, हाउ मच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब 16। ओके, 16 और हाइड्रोजन 1 32, या ऐसे भी कर दो 1 और 3 और 1 4, तो इसलिए ये 4 कर रखा है, 4 और एटम में ना हाइड्रोजन, समझा।
तो आई होप तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे निकालते हैं। बस एटॉमिक मास नंबर याद रखो और सब स्टेप बाय स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन आप आराम से निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास अब हम आराम से निकाल सकते हैं, बस उसके एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए। एटॉमिक मास के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, ये जो हमारा ना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल होता है। एटॉमिक नंबर डबल होता है बस, और कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादातर यही समझो, एटॉमिक नंबर का डबल होता है। कैलकुलेट द फॉर्मूला। अब ये देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द जिंक NO, ठीक है, Na2O K2CO3 given the masses of Jn equal 65U, Na equal 23U, K 39U, C 12U, O 16U. Calculate the formula unit mass. Okay, GNO ओके, दे रखा है ये एटॉमिक मास। और जैसा हमने पहले किया था वही करना है, कैलकुलेट द यूनिट मास। ओके, तो इसका पूरा कैलकुलेट करना है। बट हमें दे रखा है जिंक का 65 दे रखा है यू, ओके, और जिंक का 65 दे रखा है। नाइट्रोजन का 23 दे रखा है, और के का दे रखा है 39, और 12 का, सी का 12 पता ही है हमें, और ओ का 16 पता ही है। बस पुट करना है उसे फॉर्मूले में और सबको ऐड करना है। तो पहले मैं इतने को लूँगा, फिर इतने को लूँगा, फिर इतने को लूँगा, फिर टोटली प्लस करके हम टोटली कर सकते हो या नहीं। इसमें क्या करेगा, 1 बाय 1 दे रखा है ना, तो इसका कितना है 65 और 16 16 65 16 इज 5, कितना प्लस हो गया 81 हो गया। 81 इज अ मास यूनिट मास होता है जिंक ऑक्सीजन। फॉर्मूला यूनिट ऑफ द NO2O, द नाइट्रोजन 2 इंटू Na कितना दे रखा है हमें, N दे रखा है 23 होता है। ओके, सोडियम 23 होता है। 23 इंटू 6 और 2 46 प्लस 16 इज इक्वल टू 62 गिवन देयर हेयर, सॉरी। और के पोटेशियम का भी हमें दे रखा है 39 इंटू 2, एंड सी मतलब कैल्शियम कार्बन का 12 दे रखा है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 133 इज द आंसर। ये आराम से इजीली सॉल्व हो गया। हम आगे और देखेंगे, आगे और भी ज़्यादा इजी है। यदि 1 मोल्स ऑफ द कार्बन एटम वेट इज 12 ग्राम, किसी भी मोल्स, कोई से भी मोल्स ऑफ कार्बन का 12 ग्राम है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज वेट 12 ग्राम होता है। ओके, तो विच इज द मास इन ग्राम 1 एटम ऑफ द कार्बन। अगर 1 मोल्स मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का 12 ग्राम होता है, एक मोल होता है ना कार्बन का, वो 12 ग्राम होता है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना होगा। तो आपको याद है 1 मोल्स इक्वल 1 एटम, 1 मोल्स इक्वल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। वहीं पे यहाँ पुट करना है, एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, मास ऑफ द 1 मोल्स ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ओके। देन मास ऑफ 16.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। इसमें यही दे रखा है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन एटम्स का मास इज इक्वल होगा 12 ग्राम के। तो मास नंबर ऑफ 1 एटम कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 12 ग्राम अपॉन में दिस, तो 1.9962 10 की पावर -3 इज द आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा
मैं दोबारा इसे समझाता हूँ क्लियरफुली। पहले क्वेश्चन को देखिए। यदि 1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम का वेट, एक मोल ऑफ कार्बन एटम का 12 ग्राम है, तो व्हाट इज अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का 1 एटम का मास कितना होगा। तो 1 मोल ऑफ वेट इतना है, वन मोल ऑफ द, देखिए अब 1 मोल ऑफ एटम का कितना होता है, इतना 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, और 1 मोल ऑफ द एटम इज देयर, तो इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो इज 1 मोल एटम ऑफ द कार्बन इज प्रेजेंट हियर। देन देखिए, यदि विच मोर देन एटम 100 ग्राम ऑफ द सोडियम एंड 100 ग्राम ऑफ द आयरन, तो विच एटॉमिक मास Na23 Fu24। ओके, इट्स मीन यू नो कि सोडियम Na23 है, 23 है, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका, number of atomic mass of the nitrogen 23 और ग्राम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट 23 हो गया। ठीक है, 23 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन इज 6.20 × 10⁻23, तो 10 ग्राम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन दिस आर डिवाइड बाय this, तो 2.659 × 10⁻4 हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। देन ये भी ऐसे हो गया। ये अगेन देखिए, एटॉमिक मास फ्यू 23 हो गया, 56 सॉरी, और इसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर ये इक्वल होगा 6.00 10⁻23 मोल्स ऑफ द एटम। आप सिंपल सी बात करें, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिवाइड करें वो उतना कम होता है, तो सिंपल सी बात देखते ही पता चल रहा है कि सोडियम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज कंटेन ऑफ मोर देन द आयरन। ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।